Hello viewers, I Dr. SBK Lal welcome you all in my YouTube channel. Today we will study about the magic room. It is the lesson from the My English Reader class 3 DAV. This is the story, we may say it is the story about a girl named Poppy, and the day was rainy. When Poppy looked out of the window at the rain and thought about her parents. So we are seeing that a small girl, a little girl, was thinking about her parents, and the parent was on the long holiday traveling around the world. They said that Poppy was too young to go, and so she was staying with her aunt Bella. So we may say that her father left Poppy with Aunt Bella. The Aunt Bella was living in her funny old house with lots of room and strange noises. Poppy felt bored as she was all alone in the big house. Aunt Bella had gone out to visit one of her friends. It was now raining hard, so Poppy could not even go out. She went upstairs and stood in front of a locked room. She looked around. A rusted key lay on a small table in the corner. The lock was rusted too. She decided to open the room and go in. Her heart beat turned fast as she turned the key. It was difficult, but it moved. She heard a click and the door opened as if by magic. Poppy stepped into the strangest room she had ever seen. The walls were decorated with sparkly silver and gold stars and moons, but were changing colors very fast. The furniture was strange too. On the left was a sofa, but it was not on the floor. It was hanging in the air and moved around on the ceiling. Poppy sat on one of the chairs lying on the floor in the center of the room. Immediately, the table in front got covered with delicious food, cakes, pizza, cold drinks, and ice creams. Poppy took a cake and tasted. Mom, heavenly, a taste out of this world. As Poppy sat enjoying the food, the walls that were changing colors became dark. The room was filled with a light, mysterious darkness. She switched on the gold lamp next to the table, and as she did so, she heard a sound whoo, and the room was filled with smoke. For a while, she could not see anything. As the smoke settled down, she saw a figure appear, and then she saw it was a boy. "Hi," the boy said. "I am the genie of the lamp. Who are you?" "I am Poppy," she replied. "But you do not look like a genie." "Genie?" The boy was wearing expensive clothes and looked like any ordinary boy. How would I come to know that you are a real genie?" said Poppy. The boy looked at her and muttered a kind of a spell. Heap hope, and suddenly Poppy was in the air on the ceiling. "Okay, I believe you," she shouted. "Get me down." Poppy floated down to the floor and landed softly. The boy asked Poppy if she had a wish that he could fulfill. Poppy replied that she did not have any wish. She paused and said, "I cannot tell how lonely I am, and I just do not have any friends." The genie listened patiently and stood up and said, "Well, bye. I must go now." The smoky cloud appeared again, and suddenly he was gone. Then the front door banged, and she heard Aunt Bella arriving. "I have got a surprise for you, Poppy," she said. She gave Poppy a box. A strange noise was coming from inside. Poppy opened the box and found a cute little puppy. The puppy looked at her with big eyes and barked hello. Poppy smiled and felt
happy. She went into the garden to play with her new puppy. The next day, Poppy decided to say thank you to the genie, but there was nothing upstairs. तो इस हिसाब से मैंने आपको प्रोनाउंसिएट करके बताया। अब आप देखेंगे इसमें कहानी बहुत ही दिलचस्प कहानी है। इस कहानी में क्या है, ये कहानी एक छोटे से लड़की के बारे में है जो मैजिक रूम में जाती है। अब सबसे पहले वो बहुत भारी बरसात का समय था, बहुत ज़ोरों से वर्षा हो रही थी। तो उस बरसात में वो खिड़की से झांक रही थी वो पॉपी, और अपने माता पिता को याद कर रही थी जो पूरे दुनिया के टूर पर थे, हॉलीडे टूर पर थे। हॉलीडे टूर जो पूरा दुनिया में कभी कभी सैर करने के लिए लोग जाते हैं ना, पूरा मतलब, तो उसको उसी को दिया जाता है नाम, लॉन्ग हॉलीडे ट्रैवलिंग अराउंड द वर्ल्ड। तो पूरा लंबी छुट्टी में लोग जो जाते हैं ट्रैवलिंग के लिए, तो उसी टूर पर विश्व भ्रमण के लिए वो लोग गए हुए थे। और उन्होंने सोचा कि पॉपी अभी बहुत छोटी है, तो इसको आंट बेला के पास वो छोड़ गए थे। अब आंट बेला का घर कैसा था, तो उसमें बहुत सारे कमरे थे उसके मकान में, और उसमें से अनोखी आवाज़ें आया करती थी। तो पॉपी, जब एक दिन ऐसा हुआ कि पॉपी अपने आप को बोर महसूस कर रही थी, तो वो सीढ़ी चढ़ करके ऊपर गई, और ऊपर गई तो वहाँ देखा कि एक जंग लगी हुई चाबी है और ताला में भी जंग लगा हुआ है। फिर उसने चाबी घुमाई ताले में, और ताला जो है एक आवाज़ के साथ, क्लिक आवाज़ के साथ खुल गया। उसके बाद बहुत ही अनोखे रूम में वो प्रवेश की, जिसका दीवार जो है चांद तारों और अजीब तरह के रंगों से सजा हुआ था, और उसके रंग तेज़ी से बदल रहे थे। ऐसा वो लग रहा था कि जादू वाले रूम में वो पहुंच गई है। उसका फर्नीचर भी बड़ा अनोखा था। फर्नीचर कैसा था, तो फर्नीचर जो है सो हवा में लटका हुआ था, सतह पर नहीं था वो। उसके बाद क्या होता है, तो उसके बाद एक कमरे के केंद्र में, मतलब बीच में एक जो फर्नीचर था उस पर वो लेट गई। फिर उसके बाद उसने देखा कि बहुत ही स्वादिष्ट भोजन वहाँ लगा हुआ था। केक, पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सब जो स्वादिष्ट भोजन है, आइसक्रीम, ये सब वहाँ लगा हुआ था। उसने उसको चखा, उसको लगा कि ये स्वर्गिक आनंद वाला, स्वर्गिक स्वाद वाला है। धरती पर इतना सुंदर स्वाद वाला व्यंजन नहीं मिल सकता है। उसके बाद क्या होता है, तो उसके बाद फिर उस कमरा का जो है में एक अंधेरा जैसा छा गया। तो पॉपी जो है सो लैंप को जलाई, बत्ती को जलाई। बत्ती का जैसे ही उसने स्विच ऑन किया कि एक धुआं सा छा गया, और जब धुआं थमा तो एक लड़का उपस्थित हुआ, जो दिखने में तो साधारण ही लग रहा था, लेकिन बहुत ही कीमती परिधान में था, कीमती वस्त्र में था। उसने उसको हाय कह के अभिवादन किया, और उसने बताया कि वह जीन है। उसके बाद वो पॉपी ने कहा कि तुम तो, कैसे मैं विश्वास कर लूँ कि तुम जीन हो। तो उसने कहा कि रुको, तो और कुछ वो मंत्र बुदबुदाया, और वो जो पॉपी है वो हवा में तैरने लगी। इसके बाद क्या होता है कि इसके बाद फिर वो बोली पॉपी कि मैं विश्वास कर गई कि तुम जीन हो, अब मुझे नीचे उतारो। तो धीरे धीरे बहुत आराम से उसको उस जीन ने उतारा, और उसने पूछा कि तुम्हारी कोई इच्छा हो तो बतलाओ, मैं उसे पूरा करूँगा। तो पॉपी बोली कि नहीं, मेरी कोई इच्छा ऐसी नहीं है, लेकिन एक बात ज़रूर है कि मैं बहुत अकेली यहाँ रहती हूँ, कोई मेरा दोस्त नहीं है इसके साथ मैं खेल सकूँ, तो ये थोड़ी सी दिक्कत है। अब वो जो जीन था उसके बात को बहुत धैर्यपूर्वक मतलब वो सुना। और उसके बाद फिर क्या हुआ कि मतलब वो जो लड़का, जैसे एक धुआं जैसे छाया था, और धुआं छाने के साथ वो लड़का आया था, उसी हिसाब से फिर कमरे में धुआं जैसा हुआ, और लड़का गायब हो गया। उसके बाद जो है फ्रंट डोर का जो है रिंग बजा, वो बेल बजा, और आंट बेला जो है सो पहुंची। अब आंट बेला जो पहुंची तो उसने कहा कि मैं तुमको एक सरप्राइज़ देना चाहती हूँ। देखो ये जो है सो एक पॉपी, एक बक्सा है तुम्हारे लिए। और जब ही उस बक्सा से कुछ अजीब सी आवाज़ें आ रही थी, तो पॉपी जब उसको खोलती है तो उसमें वो उसको एक बहुत ही क्यूट छोटा लिटिल पप्पी मिलता है, एक बहुत ही प्यारा सा कुत्ते का बच्चा मिलता है। और वो जो है बड़ी बड़ी आँखों वाला पप्पी है, कुत्ता का बच्चा है। वो भूख करके ऐसा लग रहा है जैसे उसको पॉपी को
हेलो कह रही है। उसके बाद पॉपी बहुत खुश हुई, मुस्कुराई। उसके साथ वो गार्डन में खेलने के लिए गई। वो बहुत खुश थी। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वो अगले दिन वो चाह रही थी पॉपी कि अभिवादन करे, उसको थैंक यू जा कर के बोले। फिर वो सीढ़ी पर गई तो सीढ़ी वहाँ पर कुछ नहीं था सिवाय सीढ़ी के। तो इस हिसाब से ये पार्ट हुआ। दिस इज़ ए वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। दिस इज़ द स्टोरी अबाउट ए लिटिल गर्ल नेम्ड Poppy, and it is the story of how she visited the magic room, how she entered, how she found, how she got the rusted key, and with the help of the rusted key, she opened the rusted lock, and when the lock was unlocked, she entered the room. She found delicious food there, and when she tasted that very food, it was pizza, burger, she became very pleased, and she found that it was the taste out of this world. After that, she switch on the gold lamp, and as she uh, uh, did so, she heard a sound, and the room was full with smoke. And as the smoke disappeared, a boy appeared. It was the genie in the shape of genie in the shape of boy. Actually, actually his look was just like a ordinary boy, but he was in the expensive cloth. So Poppy asked him how she will believe that he is a genie, real genie. Then that very boy uttered a sound, and genie was in the ceiling. After that, that very boy made genie landed softly, and after that she wanted to fulfill his wish, but there was no wish except that she was lonely. So that very after that, Aunt Bella arrived. She was with a surprise. She presented her a cute little puppy, and she was very much happy with that very puppy. She wanted to thank you that very genie, but there was नथिंग अपस्टेयर्स. इट इज़ द स्टोरी. अब इसका समरी को हम इसमें लिख दिए हैं, अब इसको समझ सकते हैं. Poppy's parents were on a long holiday traveling around the world. She was staying with her aunt Bella, in her funny old house with lots of room and strange noises. Once Aunt Bella had gone out to visit one of her friends. Being bored, she went upstairs and stood in front of a locked room. She found a rusted key there. She turned the key and entered room. It was the magic room. The color and another appearance, all was the witness of it. She got very delicious food there. As soon as she switched on the gold lamp, the genie of the lamp came out of the lamp. There was the conversation with genie, and she felt a magic with him. After getting a lot of magical experiences, she came out of the room. She found Aunt Bella there. Aunt Bella gave her a cute little puppy. She was very happy with that very puppy. The next day, Poppy decided to say thank you to the genie, but there was nothing upstairs. ये हो गया. इसके बाद हम कुछ वोकेबलरी सब लिख दिए हैं. जैसे रेनी डे का मतलब होता है बरसात का दिन. ऑन ए लॉन्ग हॉलीडे ट्रेवलिंग राउंड द वर्ल्ड मतलब लंबे छुट्टी में विश्व भ्रमण. स्टेइंग विथ हर आंट अपने चाची के साथ ठहरना. स्ट्रेंज नॉइजेज मतलब अनोखी आवाज़ें. अरेस्टेड की एक जंग लगी चाबी. हार्ट बीट मतलब धड़कन. डेकोरेटेड मतलब सजाया गया था. फ्लोर मतलब सतह. इमीडिएटली मतलब सहसा अचानक. डिलीशियस मतलब स्वादिष्ट. मिस्टीरियस मतलब रहस्यमय. स्मोक मतलब धुआं. जीन मतलब जीनी को आप हिंदी में जीन कह सकते हैं. इस हिसाब से ऑर्डिनरी मतलब साधारण. रियल मतलब वास्तविक. ए क्यूट लिटिल पपी मतलब एक प्यारा छोटा कुत्ता. इसके बाद से
ये हो गया। अब इसको हम प्रोनाउंसिएट करके हिंदी में इसका माने आपको समझाने का कोशिश कर रहे हैं। इसको मेरे साथ आप देख सकते हैं। इट वाज ए वेट रेनी डे व्हेन पॉपी लुक्ड आउट ऑफ द विंडो एट द रेन एंड थॉट अबाउट हर पेरेंट्स। यह एकदम बरसात का दिन था और पॉपी खिड़की से बरसात को देख रही थी और अपने पेरेंट्स के बारे में सोच रही थी। दे वेर ऑन ए लॉन्ग हॉलीडे ट्रेवलिंग राउंड द वर्ल्ड। वो लंबी छुट्टी में विश्व भ्रमण पर निकले थे। दे सेड दैट पॉपी वाज टू यंग टू गो एंड सो शी वाज स्टेइंग विथ हर आंट। उन्होंने कहा था कि पॉपी अभी बहुत छोटी है, इतनी छोटी है कि वो नहीं जा सकती है वर्ल्ड टूर पर, तो वो अपने आंट बेला के साथ ठहरेगी। इन हर फनी ओल्ड हाउस विथ लॉट्स ऑफ रूम एंड स्ट्रेंज नॉइजेस। वो अपने आंट बेला, जो कि एक बहुत ही फनी हाउस में रहती है जिसमें बहुत सारे कमरे हैं और अनोखी आवाज़ें निकलती रहती हैं। पॉपी फेल्ट बोर्ड। पॉपी जो है पॉपी फेल्ट बोर्ड एज शी वाज ऑल अलोन इन द बिग हाउस। पॉपी बहुत बोर अनुभव कर रही थी उस बड़े घर में अकेले अकेले। आंट बेला हैड गॉन आउट टू विजिट वन ऑफ हर फ्रेंड्स। आंट बेला अपने किसी दोस्त के यहाँ गई थी घूमने के लिए। इट वाज नाउ रेनिंग हार्ड। बहुत तेज जोरों की बारिश हो रही थी। सो पॉपी कुड नॉट इवन गो आउट। इसलिए पॉपी नहीं जा सकी थी साथ में। शी वेंट अप स्टेयर्स एंड स्टूड इन फ्रंट ऑफ ए लॉक्ड रूम। वो सीढ़ी पर चढ़ी और फिर वो एक लॉक्ड रूम के सामने में खड़ी थी। शी लुक्ड अराउंड। उसने चारों ओर देखा। रस्टेड की ले ऑन ए स्मॉल टेबल इन द कॉर्नर। एक जंग लगी हुई चाबी टेबल पर पड़ी हुई थी। द लॉक वाज रस्टेड टू। ताला भी जंग लगा हुआ था। शी डिसाइडेड टू ओपन द रूम। उसने कमरे को खोलना चाहा, खोलने का निर्णय किया। एंड गो इन। शी डिसाइडेड टू ओपन द रूम एंड गो इन। और उसने कमरे को खोलना चाहा और उसमें प्रवेश करना चाहा। हर हार्ट बी टर्न फास्ट एज द टर्न द की। जैसे ही उसने चाबी को घुमाया उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। इट वॉज डिफ़िकल्ट। यह कठिन था। बट इट मूव्ड। शी हियर्ड ए क्लिक एंड द डोर ओपनड एज इफ बाय मैजिक। यह बहुत कठिन था लेकिन वो रूम खुल गया। उसने एक क्लिक की ध्वनि सुनी और दरवाज़ा खुल गया था जैसे कुछ जादू हो गया हो। उसके बाद क्या हुआ तो पॉपी स्टेप्ड इनटू द स्ट्रेंजेस्ट रूम शी हैड एवर सीन। अभी तक उसने जितने भी अनोखी चीज़ें देखी थी उसमें सबसे ज़्यादा अनोखा वो रूम था जिसमें वो प्रवेश की। द वॉल्स वर डेकोरेटेड विद स्पार्की सिल्वर एंड गोल्ड स्टार्स एंड मून्स। दीवारों को सुनहरे और चांदी वाले कलर से रंगों से सजाया गया था। उसमें बहुत चांद तारों का चित्र सब बना हुआ था। बट वे आर चेंजिंग कलर्स वेरी फास्ट। लेकिन उसके रंग बहुत तेज़ी से बदल रहे थे। द फर्नीचर वाज स्ट्रॉन्ग टू। फर्नीचर भी बहुत अनोखा था। ऑन द लेफ्ट वाज ए सोफ़ा बट इट वाज नॉट ऑन द फ्लोर। बाईं ओर सोफ़ा था लेकिन वो सतह पर नहीं था। इट वाज हैंगिंग इन द एयर एंड मूव्ड अराउंड ऑन द सीलिंग। वो जो है लटका हुआ था हवा में और छत के चारों ओर घूम रहा था। पॉपी सेट ऑन वन ऑफ द चेयर्स लाइंग ऑन द फ्लोर इन द सेंटर ऑफ द रूम। पॉपी जो एक कमरे के बीच में जो एक चेयर था, एक कुर्सी थी, उस पर वो बैठ गई। इमीडिएटली द टेबल इन फ्रंट गोट कवर्ड विद डिलीशियस फूड, केक्स, पिज़्ज़ा, कोल्ड ड्रिंक्स एंड आइसक्रीम्स। तुरंत ही टेबल जो है, टेबल के सामने में स्वादिष्ट भोजनों का अंबार लग गया। पॉपी टुक द केक एंड टेस्टेड इट। पॉपी ने एक केक को लिया और उसको चखा। मम हेवनली, ए टेस्ट आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। ये इस दुनिया का स्वाद नहीं है, ये स्वर्ग वाला स्वाद है। स्वर्ग ही में इतना स्वादिष्ट भोजन मिलता होगा। एज पॉपी सेट इंजॉइंग द फूड। पॉपी भोजन का आनंद लेने के लिए बैठी। जैसे ही पॉपी भोजन का आनंद लेने के लिए बैठी, द वॉल दैट वेयर चेंजिंग कलर्स बिकेम डार्क। कमरे का जो रंग जो बदल रहा था वो
एकदम अंधेरा हो गया, काला हो गया। या हम कह सकते हैं गहरा हो गया। द रूम वॉज फिल्ड विथ ए लाइट मिस्टीरियस डार्कनेस। कमरा जो है रहस्यमय अंधेरे से भर गया। शी स्विच्ड ऑन द गोल्ड लैम्प नेक्स्ट टू द टेबल। उसने टेबल पर रखे जो गोल्ड लैम्प था उसको उसने जलाया। एज सी डिड, सो जैसे ही उसने ऐसा किया, सी हियर्ड ए साउंड हुस एंड द रूम वाज फिल्ड विथ स्मोक। जैसे ही उसने किया, उसने एक हुस की आवाज़ सुनी और रूम पूरा धुआं से भर गया था। फॉर ए व्हाइल, कुछ देर के लिए, सी कुड नॉट सी एनीथिंग, कुछ देर के लिए वह कुछ भी नहीं देख सकी। एज द स्मोक सेटल डाउन, जैसे ही धुआं थमा, सी सॉ ए फिगर अपीयर एंड देन सी सॉ इट वाज ए बॉय। तब उसने देखा कि एक लड़का की आकृति उभरी, लड़का का फिगर जो है सो उभरा, और तब उसने एक आकृति को देखा और वो एक लड़का था। इस हिसाब से इसको देखिए। उसके बाद हाय द बॉय सेड, आई एम द जीनी ऑफ द लैम्प, हु आर यू। उसके बाद वो लड़का ने अभिवादन किया ये पॉपी को और बोला हाय। उसके बाद कहा कि मैं इस लैम्प का जीन हूँ, तुम कौन हो। तो आई एम पॉपी, सी रिप्लाइड। पॉपी ने कहा कि मैं पॉपी हूँ। उसने जवाब दिया, बट यू डू नॉट लुक लाइक ए जीनी, लेकिन तुम जीन के जैसा नहीं दिखते हो। द बॉय वॉज वेयरिंग एक्सपेंसिव क्लॉथ्स एंड लुकड लाइक एनी ऑर्डिनरी बॉय। लड़का जो है सो महंगा कपड़ा पहने हुए था और किसी साधारण लड़के के तरह ही दिख रहा था। ऐसा कुछ नहीं दिख रहा था कि वो बहुत कोई जीन हो या कुछ विशाल हो या कुछ असामान्य सा नहीं हो, बिल्कुल साधारण सा ही दिख रहा था। तो इस हिसाब से हो गया। आप इसको देखिए फिर आगे। हाउ वुड आई कम टू नो दैट यू आर ए रियल जीनी। अब उसने कहा कि मैं कैसे विश्वास करूं कि तुम वास्तव में जीन हो। सेड पॉपी, पॉपी ने कहा। द बॉय लुक्ड एट हर एंड मटर्ड ए काइंड ऑफ ए स्पेल। लड़का ने उसके तरफ देखा और उसने कुछ बुदबुदाया। हीप होप एंड सडनली पॉपी वाज इन द एयर। वो हिप होप जैसा कुछ बोला, बुदबुदाया, और उसके बाद पॉपी जो है सो हवा में थी। छत पर वो थी, हवा में तैर रही थी, छत पर सीलिंग पर थी। ओके आई बिलीव यू, उसने कहा कि ठीक है भाई, ठीक है, मैं विश्वास करती हूँ कि तुम जीनी ही हो। वो चिल्लाई। अब हवा में लटकेगी तो चिल्लाएगी ही ना वो, तो हवा में चिल्ला रही थी। ओके आई बिलीव यू, सी शाउटेड, गेट मी डाउन। ओके ओके, मैं विश्वास करती हूँ कि तुम वही जीन हो, अब मुझे नीचे उतारो। पॉपी फ्लोटेड डाउन टू द फ्लोर एंड लैंडेड सॉफ्टली। पॉपी धीरे धीरे ज़मीन पर आ गई, बहुत आराम से वो उतरी हवा से नीचे ज़मीन पर, सतह पर। द बॉय आस्क्ड पॉपी इफ सी हैड ए विश दैट ही कुड फुलफिल। अगर उसके लड़का ने कहा कि अगर तुम्हारी कोई इच्छा हो तो बोलो, मैं उसको पूरा करूँगा। पॉपी रिप्लाइड दैट सी डिड नॉट हैव एनी विश। उसने कहा कि उसकी कोई इच्छा नहीं है। आई कैन नॉट टेल हाउ लोनली। उसके बाद सी पॉज्ड, कुछ उसके बाद वो थोड़ी देर के लिए रुकी और बोली, आई कैन नॉट टेल हाउ लोनली आई एम एंड आई जस्ट डू नॉट हैव एनी फ्रेंड्स। मैं नहीं कह सकती हूँ कि मैं कितनी अकेली हूँ और मेरा कोई दोस्त नहीं है। द जीनी लिसन्ड पेशेंटली एंड स्टूड अप एंड सेड, वेल बाय, आई मस्ट गो नाउ। वो जो जीन है उसने धैर्यपूर्वक उसके बात को सुना, फिर खड़ा हुआ और बोला कि बाय, अब हम चलते हैं, अब हमको अवश्य जाना चाहिए। द स्मोकी क्लाउड अपीयर्ड अगेन एंड सडनली ही वॉज गॉन। एक धुआं वाला जो है बादल उपस्थित हुआ और लड़का चला गया। देन द फ्रंट डोर बैंग्ड एंड सी हर्ड आंट बेला अराइविंग। तब फ्रंट डोर का जो की घंटी बजी और फिर आंट बेला जो है उसने आंट बेला को सुना, उसको आते हुए।
आई हैव गोट ए सरप्राइज फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए एक सरप्राइज लाई हूँ। शी गेव पॉपी ए बॉक्स, उसने पॉपी को एक बक्सा दिया। ए स्ट्रेंज नॉइस वॉज कमिंग फ्रॉम इनसाइड, एक अनोखी आवाज़ उसमें से आ रही थी। पॉपी ओपनड द बॉक्स एंड फाउंड ए क्यूट लिटिल पप्पी, पॉपी ने उस बक्सा को खोला और उसने एक क्यूट लिटिल पप्पी को पाया। द पॉपी लुक्ड एट हर विथ बिग आइज एंड बार्क्ड हेलो, पप्पी बड़ी आँखों से उसकी तरफ देख रहा था और ऐसे भूखा जैसे कि वो उसको अभिवादन कर रहा हो, हेलो कह रहा हो। पॉपी स्माइल्ड एंड फेल्ट हैप्पी, पॉपी मुस्कुराई और वो बहुत खुशी अनुभव कर रही थी। शी वेंट इनटू द गार्डन टू प्ले विथ हर न्यू पप्पी, वो गार्डन गई खेलने के लिए उस अपने नए पप्पी के साथ। द नेक्स्ट डे पॉपी डिसाइडेड टू से, अगले दिन पॉपी ने निर्णय किया उसको कहने का थैंक यू टू द जीनी, जीनी को थैंक यू कहने का उसने पॉपी ने निर्णय लिया। बट देयर वाज नथिंग अप स्टेयर्स, लेकिन सीढ़ी पर कुछ भी नहीं था। इस हिसाब से ये हो गया पूरा। अब हम जो है इसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे। आंसर दीज क्वेश्चंस ब्रीफली। वेयर हैड पॉपीज पेरेंट गॉन, पॉपी के माता पिता कहाँ गए थे? तो ये हॉलीडे ट्रैवलिंग राउंड द वर्ल्ड पर गए थे, वो छुट्टी में, जो लंबी छुट्टी में जो विश्व भ्रमण होता है उस पर वो गए थे। पॉपीज पेरेंट्स वेयर ऑन ए लॉन्ग हॉलीडे ट्रैवलिंग राउंड द वर्ल्ड। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है व्हाई डिड पॉपी अकम्पनी हर पेरेंट्स, बिकॉज पॉपी वाज टू यंग टू गो। तीसरा क्वेश्चन व्हेन पॉपी वेंट इनटू द मैजिक रूम व्हाट डिड सी ऑन द वॉल। The wall were decorated with sparkly silver and gold stars and moons, but were changing colors very fast. चौथा क्वेश्चन what was strange about the sofa? Sofa was hanging in the air and moved around on the ceiling. What happened when Poppy switched on the light? The room was filled with smoke, and when the smoke settled down, a genie appeared there. How did the boy prove that he was the jinn of the lamp? He muttered a kind of spell and made Poppy in the air and on the ceiling. What did Poppy tell the genie about herself? Poppy replied that she did not have any wish. She further asked, she is lonely and there is no friends with whom she may play. उसके बाद how was Poppy's wish fulfilled? She got a cute little puppy with whom she may play. उसके बाद है the following sentence tell Poppy's story but they are given in jumbled order. jumbled order में है, इसके सीक्वेंस को ठीक करना है, इसके ऑर्डर को ठीक करना है। तो इसमें जो है सबसे पहले ये जो है ये 7 होगा, फिर 5, फिर 3, फिर 8, फिर 1, फिर 9, फिर 4, फिर 2, फिर 6, फिर 10। इस हिसाब से इसको ऑर्डर में कर लीजिए और उसके बाद फिर अब इसको हम पढ़ करके बताते हैं। इसमें जो है ये होगा, सबसे पहले होगा पॉपी वाज अलोन इन द हाउस एंड वाज फीलिंग बोर्ड। उसके होगा सी वेंट टू ए रूम ऑन ए अपर फ्लोर। उसके बाद होगा इट वाज ए स्ट्रेंज रूम विथ सम फर्नीचर हैंगिंग इन द एयर नियर द सीलिंग। इसके बाद होगा चौथा नंबर व्हेन पॉपी सेट ऑन ए चेयर डिलीशियस फूड अपीयर्ड इन फ्रंट ऑफ हर। उसके बाद होगा इट वाज ए स्ट्रेंज रूम विथ सम फर्नीचर हैंगिंग इन द एयर नियर द सीलिंग। उसके बाद व्हेन पॉपी सेट ऑन ए चेयर डिलीशियस फूड अपीयर्ड इन फ्रंट ऑफ हर। उसके बाद पॉपी इंजॉयड द फूड। उसके बाद फिर 6 नंबर में पढ़ेंगे पॉपी टोल्ड द जीनी दैट शी वाज फीलिंग लोनली। उसके बाद द जीनी डिसअपीयर्ड विदाउट सेइंग एनीथिंग। उसके बाद आफ्टर ए व्हाइल ऑन्ट बेला बाउट ए क्यूट लिटिल पॉपी फॉर हर। उसके बाद पॉपी फेल्ट हैप्पी टू गेट ए प्लेमेट। उसके बाद सबसे लास्ट में पॉपी वेंट टू द रूम टू थैंक द जीनी बट देयर वाज नोबडी इनसाइड। इसके बाद है मैचिंग है, तो मिस्टीरियस का क्या होगा? समथिंग स्ट्रेंज दैट वी डू नॉट अंडरस्टैंड,
उसके बाद है सेकेंड में एक्सपेंसिव, इसका मतलब होता है कॉस्टिंग ए लॉट ऑफ मनी। ऑर्डिनरी, इसका मतलब हो गया, ऑर्डिनरी का मतलब हो गया कि अबाउट व्हिच देयर इज नथिंग स्पेशल। पॉज, टू स्टॉप फॉर ए शॉर्ट टाइम, पेशेंटली रिमेनिंग वेरी कूल। और उसके बाद फिर है कि इसमें फिल इन दी ब्लैंक्स है, तो इसमें भरेंगे ही हर लुक्स वेयर ऑर्डिनरी, she had a very sweet voice, but she had a very sweet voice. We patiently waited for the doctor. We heard mysterious noise coming from inside the house. My mother is not fond of wearing expensive jewelry. Did he pause before answering the question? और उसके बाद स्पेलिंग सबको ठीक करना है। ये करने के बाद हम स्पेलिंग सबको देखेंगे। तो जैसे इमीडिएटली है, तो ये इमीडिएटली का स्पेलिंग क्या होगा? IMMEDIATELY। सेकेंड में है डिलीशियस, तो उसका स्पेलिंग होगा DELICIOUS। फ्लोटेड, FLOATED। लोनली, LONELY। सीलिंग, CEILING। फुलफिल, FULFIL। हेवेनली, HEAVENLY। फ्रेंड, FRIEND। मिस्टीरियस, MISTERIOUS। बोर्ड, BORED। और उसके बाद फिर इसमें है कि ये कॉपी के जगह पर आप होते तो कैसा फील करते, तो उसके बारे में इसमें आप उसको बोलिए, उसको अपने से तैयार कीजिए कि हाउ विल फील इफ़ वी वेयर इन द प्लेस ऑफ कॉपी। पूरा वीडियो को अंत तक देखें, उसके बाद फिर इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए नाइस डे। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, रिंग द आई बेल। थैंक यू वेरी मच। पूरा इसको आप देखिए और कमेंट बॉक्स में उसके बाद फिर आप कमेंट कर सकते हैं। तो इस हिसाब से मैंने कोशिश किया आपको बतलाने का, इसको पढ़ करके इसका अनुवाद को ही बताने का। कुछ वोकेबुलरी सब भी हम लोगों ने देखा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।